खेती बिल बने ने, खेती कानून बने ने कि किसानां दे हित दे ने ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ ड्रैकोनियन लॉ एक्चुअली। ये लोगों का पेशेंस चेक कर रही है एक्चुअली सरकार ना, वो देख रही है कि कितना लोगों में वो है, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेंगे। मैं भी खुद किसान बैकग्राउंड से आता हूँ। वो जो सामने टेंट है उसमें गुजरात के किसान हमारे साथ आए हुए हैं, महाराष्ट्र के किसान 2 दिन बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे और भारी संख्या में किसान आएगा। और जब भी हमें ऊपर से आह्वान आएगा किसान संगठनों का, ये पूरी जयपुर दिल्ली नेशनल वाली रोड है, ये जाम कर देंगे, पत्ता भी नहीं हिलेगा। मैं वहाँ पड़ोसी हूँ। 4 साल पहले उन्होंने करोड़ों रुपए की सभा करके वो शोध किया था मिट्टी के परीक्षण वाला, आज उसके जंग लग गई। क्या शोध करेंगे? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अरे कोरोना काल के अंदर जब खेती का काम चल रहा था, आपने 1 रुपया डीजल कम नहीं किया, विदेशों में डीजल फ्री हो गया, तुम क्या शोध करके किसान का फायदा कर दोगे? इस देश को बचाया किसान ने, और आप डीजल आपने बढ़ाया, आपने 15 रुपये। हमारे पड़ोसी मुल्कों ने घटाया और हमारे मोदी जी ने बढ़ाया ताकि खेती इनकी बंद हो जाए। जे खेती कानून रद्द होणगे फिर ही तुसी घर नूं वापस जावोगे? हमने जिस दिन मोदी जी कानून लेके आए थे, जब उसका हिंदी अनुवाद हमारे पास आया था, हमने पढ़ के उसी दिन तैयारी कर ली थी। आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने किसान की नहीं सुनी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਇੱਥੇ 6 ਲੇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਆ, ਜੋ 3 ਲੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਡਲੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੂਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੂਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ, ਜੋ ਕੀਨੂ ਦਾ ਜੂਸ ਆ, ਜੂਸ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੂਸਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, सेवादार ने सेवा कर रहे हैं। हाँ जी भाई जी, कित्थों आए हो? हरियाणा से। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप? मैं 5 दिन से आ रहा हूँ लगातार जी। अच्छा, हर रोज सेवा करते हो? हाँ, हर रोज मैं अपनी तरफ से हर रोज कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, जो भी मेरे से बनता है। मैं रोज आ रहा हूँ यहाँ पे 6-7 घंटे। खान पीन का सामान लेके? हाँ, खान पीन के सामान लेके आते हैं। हाँ जी, हर रोज आके जाने हो? रोज आ रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨੇ ਇਹ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ ड्रैकोनियन लॉ एक्चुअली। इट मस्ट री अपील। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ? ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? नहीं, एक्चुअली ये लोगों का पेशेंस चेक कर रही है एक्चुअली सरकार ना, वो देख रही है कि कितना लोगों में वो है, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेंगे। मैं भी खुद किसान बैकग्राउंड से आता हूँ। ठीक है जी। हाँ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਠੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਾਲੂ ਕਥੂਰੀਆ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਥੂਰੀਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੂਸ ਦੀ ਸਟਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਜੂਸ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਥੋਰੀਆ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ। 26 तारीख तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ जाम लगाया है, और उसके बाद में हमने हरियाणा का जो आसपास का किसान है वो किन्नू लेके आया है, राशन की व्यवस्था उसने की है। उसके बाद में पंजाब के हमारे भाई है वो कम्बल लेके आ रहे हैं।
हरियाणा के साथ ही आटा वगैरह जो भी खाने और रहने की व्यवस्था है वो सारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के हमारे साथी कर रहे हैं पर। और आज आप देख रहे हो 5-6 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। हम तो मोदी सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वक्त रहते वो चेत जाए, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, वरना ये आंदोलन और लंबा चलेगा। किसान किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे, इस आंदोलन को जीत के जाएंगे। वो जो ये प्रचार कर रहे हैं ना कि वो हम किसानों से एमपी में बात करें, हम कच्छ में बात करें, वो जो सामने टेंट है उसमें गुजरात के किसान हैं हमारे साथ आए हुए हैं, महाराष्ट्र के किसान 2 दिन बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे और भारी संख्या में किसान आएगा। और जब भी हमें ऊपर से आह्वान आएगा किसान संगठनों का, ये पूरी जयपुर दिल्ली नेशनल वाली रोड है, ये जाम कर देंगे, पत्ता भी नहीं हिलेगा। ਜਾਨੀ ਕਿ ਥੁਰੀਆ ਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਆ? देखो, जो किसान देश को पाल सकता है वो अपने आंदोलन को तो चला ही सकता है, ये तो दिमाग में होनी चाहिए। हमारे गांव में कमेटियां बन के गांव वाइज, घर वाइज आटा वगैरह लंगर का सामान इकट्ठा करके ट्रॉली में डाल के और यहाँ पर पहुँचा रहे हैं, ताकि जो किसान सड़कों के ऊपर है उनको कोई तकलीफ ना हो। ये हमारे किसान भाई, हमारी महिला किसान मदद कर रही है। घरों में बैठी हुई जो हमारी माताएं बहनें हैं वो लड्डू देसी घी के यहाँ पर बना के भेज रही है, ताकि सर्दी के अंदर हमारे किसानों को कोई दिक्कत ना आए। ये जन आंदोलन है। मोदी जी सद्बुद्धि ले, हम तो यही कहना चाहते हैं, वरना जमीन खिसकेगी और किसान जीतेगा, ये आप देखते रहना। ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। मोदी जी को आए हुए 6 साल हो गए। राजस्थान में जिस जगह खड़े हैं ना, बाजरे का समर्थन मूल्य है 2150 रुपये, बाजरा 1300 रुपये बिक रहा है। हरियाणा के किसानों से 1100 रुपये बाजरा बिक रहा है। मक्की का समर्थन मूल्य है 1850 रुपये। बिहार और पंजाब में मक्की बिक रही है 750 रुपये। कल जहाँ पर मोदी जी ने सभा की है एमपी के अंदर, एक तरफ मोदी जी सभा कर रहे थे, दूसरी तरफ गोभी वाले किसान ने 10 बीघे गोभी के अंदर अपनी तवियाँ चला दी कि मेरे को भाव नहीं मिले। जहाँ पर मोदी जी सभा करे आए, कहाँ से आय दुगनी करेंगे? ये आय हमारी नहीं करेंगे, ये अडानी और अंबानी की करेंगे। डीजल का रेट बढ़ाएंगे, हमारे खाद बीज का रेट बढ़ाएंगे, जो किसान लेता है उसकी जो है वो महंगाई ज़्यादा करेंगे, किसान को तो ये नीचे लेके जाएंगे। और रही कई कसर, ये 3 काले कानून लाके कर दी कि हमारे पास ज़मीन के जरिए कोई और हमारे पास रोजगार का साधन नहीं था, वही अडानी और अंबानी के हवाले करने का प्रोग्राम मोदी ने किया है। लेकिन देश का किसान लड़ेगा, इस देश को भी बचाएगा, अपनी ज़मीन को भी बचाएगा और इस लोकतंत्र को भी बचाएगा। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ? हम किसान सभा से है। कांग्रेस पार्टी ने भला नहीं किया, कांग्रेस को 33 सीटों पर ले आए किसान। और मोदी जी भला नहीं करेंगे, मोदी जी को भी 20 सीटों पर ले आएगा किसान। वो कह रहे हैं ना कि ये समझने की जरूरत है, किसान समझ गया। स्वामीनाथन का मतलब है लागत का 1.5 गुना आप किसान को दो। जहां अगर 5 रुपये किसान के खर्च होते हैं तो आप उसको मुनाफे के साथ 7.5 रुपये दो। पिछले 6 साल हो गए, वादा किया था पहली मीटिंग में करूँगा, ये मोदी जी का वादा मीडिया के माध्यम से आप देख लो कि पहले ही मीटिंग में मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूँगा। 6 साल हो गए, अब कह रहे हैं मैं एमएसपी दूंगा। जब आप वो कह रहे थे स्वामीनाथन लागू करूंगा, 6 सालों में नहीं किया, तो एमएसपी कब लागू करोगे? केवल 6% लोगों को एमएसपी मिलती है, 94% किसान जो है वो अपनी फसल मंडी में डाल के आते हैं, बेच के नहीं आते। ये हालात किसानों की हो चुकी है। किसान कर्जे से तंग हो गया है। 4 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं इस देश के अंदर। इस मोदी जी को समझ कब आएगी? हम कह रहे हैं समझे मोदी जी, हमारी किसानों की पीड़ा को समझे, वरना ये 20 लाख लोग जो है जब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये कानून रद्द नहीं करोगे आप। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਸੋਧ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ? मैं शोध की बात कहूँ, मोदी जी ने मिट्टी का परीक्षण किया था गंगानगर के सूरतगढ़ के अंदर। मैं वहाँ पड़ोसी हूँ। 4 साल पहले उन्होंने करोड़ों रुपए की सभा करके वो शोध किया था मिट्टी के परीक्षण वाला। आज उसके जंग लग गई। क्या शोध करेंगे? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। खेती में क्या शोध करना है? आप समर्थन मूल्य बढ़ाओ और ये कानून रद्द करो, शोध अपने आप हो जाएगा। भी खेती को उपजाऊ तो किसान ने बनाना है, मेहनत किसान ने करनी है, मोदी जी ने थोड़ी करनी है। उसके लिए सुविधाएं दो। सब्सिडियां खत्म कर रहे हो आप,
सारी की सारी सब्सिडियां आप खत्म कर रहे हो किसानों की। बीज के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को लेके आ रहे हो, बड़े बड़े वेयर हाउस के लिए बैंकों से आप उनको लोन दे रहे हो। अरे कोरोना काल के अंदर जब खेती का काम चल रहा था, आपने 1 रुपया डीजल कम नहीं किया, विदेशों में डीजल फ्री हो गया, तुम क्या शोध करके किसान का फायदा कर दोगे? 1 महीने में किसान ही काम करता था और उसकी जो आय थी 4 पॉइंट समथिंग रही थी किसान की। इस देश को बचाया किसान ने, और आप डीजल आपने बढ़ाया, आपने 15 रुपये। हमारे पड़ोसी मुल्कों ने घटाया और हमारे मोदी जी ने बढ़ाया ताकि खेती इनकी बंद हो जाए। हम चाहते हैं कि आपके झांसों में किसान आने वाला नहीं है। किसान अब समझ चुका कि आपकी जो नीतियां हैं वो अडानी और अंबानी के लिए, आम किसान के लिए नहीं। यानी कि ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵੋਗੇ। हमने जिस दिन मोदी जी कानून लेके आए थे, जब उसका हिंदी अनुवाद हमारे पास आया था, हमने पढ़ के उसी दिन तैयारी कर ली थी। जब हमने दिल्ली के अंदर पड़ाव डाला था तो हमारी ट्रालियों के अंदर 6-6 महीने का राशन था। हमें पता था कि अड़ियल आदमी है, इस देश का दुर्भाग्य है। आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने किसान की नहीं सुनी, लेकिन इस प्रधानमंत्री का हमें पता था कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और हम 6 महीने का राशन तो कह के आए हैं। बाकी तो हमारे किसान भाई है, चाहे ये लड़ाई 2 साल भी चलेगी ना तो भी पीछे नहीं हटेंगे, ये दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये किसान 500 किसान संगठनों से ज़्यादा संगठनों का ये आंदोलन है और वो अपने 10 संगठन टूट पूजिए किसानों को लेके कह रहे कि ये खुश है तो बराबर पड़ाव लगा दो। जो किसान खुश है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास सत्ता है, उनका पड़ाव लगा दो, पता चल जाएगा खुश है कि दुखी है वो। ये जी ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ ਥੁਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, 4 ਸਾਲ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ, ਸਾਲ ਚੱਲੇ, 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਧ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ।